morning, everyone. Good morning, ma'am. Okay, this is one of the sessions from IIC. It's an IIC activity, IIC club activity, Institution Innovation Council. So what we have been doing here is that we start from the basics and then we go further on to the details of entrepreneurship development. Okay? So one of your very first sessions, I believe, was on what is entrepreneurship, what is innovation. So we had a basic session on entrepreneurship and innovation. After that, we went on to your idea generation through design thinking, empathy mapping. I think some of you attended that session. The fourth semester was there. I think second semester was also there when I did that empathy mapping and design thinking session. So that's the second part. Like once you decide, right, you are going to go for entrepreneurship, then you decide for going through a new product or any new innovation that is possible, right? For that, we go for, as I said, the second step was about idea generation. What are the various ideas, how the innovation can happen, right? What kind of innovation will work? So we have activities related to that also. If you remember, you had a good idea, bad idea activity, I think with MBA. Then we had business idea hackathon kind of a thing where you were supposed to give up your ideas, right? So when we are at a stage of idea generation, sometimes a little bit more is required to understand that idea. So the next step of design thinking and part of your idea generation could be the prototype development. Alright? So prototype development, what exactly is that? Right? Putting your idea into a place where you can visualize it. It's a visualization thing. I said I have an idea of a product. Okay, we can discuss a lot about it. But if I have something in my hand, a tangible thing, then it becomes more easy for people to discuss that idea. If I am talking about something abstract, yes, some of you will interact with me, talk to me about कि ऐसा हो सकता है, yes, we can do this. But unless we have something tangible in hand, it becomes very difficult to visualize. So prototype is that visualization. Okay, what is prototype? It is a visual representation of the idea, and that is its importance. Prototyping, when we do, it is not always that you are creating a prototype for the whole product. What we are doing is, we may have different parts of the product. Okay, a product will be made up of different parts, and you can have a prototype for separate parts. It is not necessary that your very first prototype will be a complete product. Remember that. Prototyping is an exercise to put your ideas into a tangible format. Nothing more, nothing less. So even if it is not a complete product, then also prototyping exercise can be done. Okay? So how do we go about doing that? How do we design that? That is what we are going to talk about. But before that, why is prototyping important? Why do you think putting our ideas into a visual representation or a tangible product or something which you can see, touch is important? Anyone? Is it important? Yes or no? It is. It is easier to think about the product, or is it easier to think about the product when it is in some kind of a shape in front of you? When it is in front of you, right? Even if it is a small sketch. Starting from, even from childhood, what do you do? When you are drawing things, what are you trying to do? One is that you reproduce what is already available. बच्चे को क्या एप्पल की शेप ऐसे होती है, बनाना ऐसा होता है, but you don't have every kind of fruit at home. So what do you show
पिक्चर से उसको विजुअलाइजेशन होता है। एंड समटाइम्स अ चाइल्ड आस्क यू, अगर आपने उससे कोई दूसरा कलर करवा दिया है, जब रियल चीज उसके सामने आती है तो वो बोलेगा कि भाई एप्पल तो लाल था, ये ग्रीन कैसे हो गया। यू शो हिम अ गोल्डन एप्पल इन हैंड, आपने हमेशा एप्पल का कलर रेड करवाया है, तो एक इंक्विजिटिव चाइल्ड पूछेगा, तो पूछना भी चाहिए कि भाई एप्पल तो रेड होता है, दिस इज नॉट एन एप्पल। सो थिंक अबाउट इन दोस टर्म्स दैट द चाइल्ड विल ओनली लर्न, यस इट इज इजियर, ओके हम आइडेंटिफाई करवा देते हैं, बड़ी सी पिक्चर बुक दे देते हैं बच्चे को, बच्चा भी रट लेता है, बट जब तक वो चीज़ हाथ में नहीं आती है उसको नहीं पता लगता ये क्या है, तब तक वो सिर्फ रट के बता रहा है, राइट। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी से कि आप लोगों को हम इंटर्नशिप्स के लिए भेजेंगे। व्हाट इज द फोकस दैट यू गो इनटू अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, यू एक्चुअली सिट देयर for days, you see how work is done. That is a totally different experience from reading about it in a book. मैंने बोला एक मैनेजर का काम क्या है, मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट्स को देखना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वर्कशीट्स बनानी है, वर्क फ्लोज बनाने हैं, प्रोसेस बनाना है, रोज उसको बहुत सारी प्लानिंग करनी है, राइट, कंट्रोल करना है। Okay, this is all theoretical. When you go on to an corporate organization, sit with that manager, then you see what he is doing every day. क्या वो एक्सेल पे काम कर रहा है, क्या वो वर्ड पे काम कर रहा है, क्या वो फोन उठा के बात कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, then you realize the practical part of it. So prototype is nothing but the practical part of your life if you are trying to go for a new innovation, right? तो बेनिफिट ये है कि जब आपके हाथ में नेक्स्ट जो चीज़ आती है, हाथ में प्रोटोटाइप आता है, तो व्हाट हैपेंस इज एक तो क्रिएटिविटी फ्लो, तुम्हारे दिमाग में कुछ था, तुमने स्केच किया, जब स्केच किया यू डिड नॉट लाइक कि नहीं ये कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसी चीज़ को आई एम नॉट गोइंग टू यूज। जब इन्होंने मोबाइल फोन्स भी बनाए थे तो क्या किया था, पहले सबसे पहले स्केचिंग ही हुई थी। स्केचिंग इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोटोटाइपिंग। यू स्केच योर आइडिया कि दिस इज व्हाट आई वांट। आपके टॉप स्क्रीन पे, फर्स्ट स्क्रीन पे क्या होना चाहिए, क्या टैब होना चाहिए, कौन सी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, बट यू क्रिएटेड, आप उसको बनाते हैं कि ऊपर सन बना है, ये जो सारी चीज़ें हमारे मोबाइल फ़ोन में होती हैं फर्स्ट उस पर, वो किसी न किसी ने ड्रॉ की हैं पहले, सबसे पहले कि यहाँ पर टेम्परेचर आ सकता है, यहाँ पर इतनी चीज़ें इसमें शो हो सकती हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वी विल गो देयर, नीचे बैक बटन होना चाहिए या एंटर बटन होना चाहिए, तो किसी न किसी ने कभी न कभी फर्स्ट टाइम उसको ड्रॉ किया एंड दैट वाज योर प्रोटोटाइप। बेनिफिट क्या होता है कि जब आपने एक छोटा सा अपना स्केच बनाकर या प्रोटोटाइप बनाकर when you give it to your colleagues or your co-workers or for that matter you give it to your customer जिसके लिए आप ड्रॉ कर रहे हो, the end user, that person or those persons will tell you कि मुझे ऐसा चाहिए या हम कुछ और सोच रहे हैं, कि अभी तक डिस्कशन चल रही थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए, समथिंग शुड बी देयर जो कि मेरा ये काम कर सके, बट वो समथिंग कैसा होना चाहिए। तो आपने जब एक चीज़ बना के दी तो देन दैट पर्सन विल टेल यू नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीबडी विल हैव देयर ओपिनियंस। सो प्रोटोटाइपिंग बेसिकली brings out the creative juices because once you have something in hand then you can say नहीं इसको गोल होना चाहिए था, नहीं रेक्टेंगल होना चाहिए था, नहीं ट्रायंगल बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। So aesthetic parts will come in, color schemes will come in, the holding part will come in कि ये मेरे हाथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, do I want something which I have to hold in hand, तो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, मेरे पॉकेट में आ सकता है कि नहीं आ सकता, पर्स में आ सकता है नहीं आ सकता। लेडीज पर्सेस पहले जो होते थे अभी भी जैसे हैं, जब मोबाइल फ़ोन आ गए तो दे स्टार्टेड मेकिंग अ स्पेशल पॉकेट टू कीप अ मोबाइल फ़ोन, पहले नहीं थे। मोबाइल फ़ोन के साइजेस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पर्सेस के पॉकेट के साइजेस बढ़ते घटते हैं, तो फिर वो बेचारे इतने परेशान हो गए कि सबके डिफरेंट मॉडल्स हैं तो उन्होंने एक बना दिया।
नाउ व्हाट दे डू इज कि या तो आप डिपेंड है कि नाउ यू हैव चॉइसेस, कि वो बड़ा सा कुछ बना देते हैं, कई बार स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स बना देते हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स चॉइस कि जिसको बड़ा चाहिए वो बड़ा लेता है, जिसको छोटा चाहिए वो छोटा लेता है, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. बट पीपल थॉट अबाउट इट कि भाई अब नीड ये है. ओके, सो प्रोटोटाइपिंग हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई दैट नीड फ्रॉम द कस्टमर. कई बार कस्टमर को भी नहीं मालूम होता है कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए. दिस हेल्प्स. तो आपके हाथ में एक छोटा सा मॉडल आ जाता है कि हाउ इट विल लुक, देन द कस्टमर विल टेल यू कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग स्लीक और आई वॉन्ट समथिंग नाइस. क्योंकि इसी तरह से मोबाइल फोन में तो पहले तो कितने मोटे मोबाइल तो आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे. तो नोकिया के जो पुराने मॉडल्स थे दे यूज्ड टू बी सो हैवी एंड अनविल्डी, क्योंकि उनको लेकर घूमना और ठीक है तब उसकी बॉडी कॉल दैट उसकी निशान होती थी. मोबाइल तो ऐसा भी है आज की डेट में, वो मोबाइल उठाओगे तो ठीक है क्या उठाया हुआ. नाउ वी हैव स्मॉल स्मॉल और very sleek kind of mobile phones, right? But that is how the prototyping works. Second thing is communication increase होगा. ठीक है, communication कैसे increase होगा? when you have something tangible in mind. Not all people are visualizers, right? हम लोग परसेप्शन, विजुअलाइजेशन, लर्निंग टेक्निक्स की बात करते हैं कि सब स्टूडेंट्स जो है या कुछ लोग जो होते हैं विजुअली देखकर उनको चीज़ें याद होती हैं. कुछ लोगों का लर्निंग स्टाइल है कि वो सुनते हैं तो देन दे विल लर्न, राइट. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ेंगे तो देन दे विल लर्न, राइट. सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल. सो व्हेन यू हैव समथिंग टैंजिबल इन हैंड एंड ऑफ कोर्स यू हैव दैट रिटन वर्ड कि हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स योर कम्युनिकेशन पैटर्न्स बनते हैं. पीपल कैन टॉक अबाउट इट कि हाँ इसमें क्या होना चाहिए. एंड व्हेन यू टॉक योर आइडियाज फ्लो. आइडिया इज टू गेट इनोवेटिव डिज़ाइन. हम डिज़ाइन तक आ गए, हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर दिया होगा, ठीक है. ये हम प्रोडक्ट के आइडिया के बाद की बात कर रहे हैं. प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद हाउ डू यू कीप ऑन मेकिंग चेंजेस एंड मेकिंग इट बेटर, राइट. And it also permits early evaluation. That is कि क्या client को पसंद आएगा कि नहीं आएगा. Sometimes clients and customers will want कि नहीं थोड़ा working stage पे ले आओ फिर मैं decide करूँगा. बिल्कुल अभी आप on your working table अभी टेबल वाला डिज़ाइन लीजिए. So sketches, preliminary sketches and preliminary computer simulations, ये सारे के सारे आपके जो पार्ट्स हैं ये इंटरनलाइज रहते हैं. बट सम कस्टमर्स मे वांट टू बी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट डेवलपमेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो उस केस में आपको एक इवैल्यूएशन या एक फीडबैक मिलता है जैसे कि ये प्रोडक्ट या ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा. कुछ चीज़ें देखें स्ट्रेट अवे से कि ये तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए. सो यू नो दैट यू हैव टू चेंज योर डिज़ाइन स्ट्रेट. So when we say about roadmap, what do we do? What are we thinking? First is the priority. Priority कौन है? End users, customers. Priority हमेशा कौन होनी चाहिए? जिनको आपने ये प्रोडक्ट बेचना है. Always remember, पैसा जिसने खर्च करना है वही प्रायोरिटी है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत बढ़िया सा प्रोडक्ट आपने बना दिया लेकिन कस्टमर्स को नहीं चाहिए तो इट इज़ यूजलेस. बिकॉज व्हाट आर वी डूइंग? वी आर क्रिएटिंग अ बिजनेस, वी आर ब्रिंगिंग सम बिजनेस टू द मार्केट. और मार्केट में प्रोडक्ट वही चलेगा जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट में. क्या हम सारी चीज़ें खरीदते हैं? कई बार हम देखते हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है उसका छोड़ लेकिन इसका यूज़ There are a lot of beautiful things in the market. वो हम जाते हैं दुकानों पे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दिखती हैं, हम उसको देखते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन हम उसको खरीदते नहीं हैं. क्योंकि फिर हम ये देखते हैं कि मुझे इसका यूज़ है कि नहीं है. अनलेस ऑफ कोर्स इट इज़ अ डेकोरेटिव पीस तो तब ठीक है, हम एक आध अपने ड्राइंग रूम में रखने के लिए एक आध चीज़ ले आएंगे. बट विल नॉट पुट इट लॉट ऑफ सच पीसेज इन आवर होम बिकॉज दे आर नॉट यूजफुल टू अस. So priority should always be those people कि
उसकी ऑडियंस कौन है, इनको बेच रहे हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी एट द एंड. If you are unable to sell anything, then your best idea is useless. There is no business there. So always remember that. Then we look at the purpose of my prototype now. कि मैं prototype किस purpose के लिए बना रही हूँ. Meaning कि is it an internal discussion that I want with my colleagues, okay, before going to the client कि हमने ये बनाया, या I am making that prototype for the client for testing or first test, second test or something like that. ठीक है. तो depending upon my purpose, I will create a different type of prototype. Okay. Then we come to the design. When we are looking at the purpose, we are also looking at the client. उसके लिए देख रही हूँ कि मुझे किसके लिए बनाना है. I am also looking at design space लिखा मैंने. What is design space means? कि already उस एरिया में क्या अवेलेबल है. That is also important before we decide. Then we look at its characteristics. कि मुझे कौन सा डिज़ाइन चाहिए, what kind of materials I am going to use. Okay, लाइट वेट चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, साइज कैसा होगा, क्या क्लाइंट पसंद करेगा. एंड देन वी गो फॉर एक्सपेरिमेंट. तो अगर मेरे पास 3-4 मटेरियल की चॉइस है, so I will make a prototype in each and every material and then see how it looks, how it works. They can be a combination of materials. कि आधा पोर्शन हम एक मटेरियल से बना रहे हैं, बाकी पोर्शन हम दूसरे मटेरियल से बना रहे हैं. You can mix and match. That depends upon your R&D capabilities also. Okay? It depends also on the R&D capabilities. Materials will depend upon the cost that you are willing to spend. It will also depend upon what will be the cost of your product. ये सारी चीज़ें आपको साथ में सोचनी पड़ेगी. आपने एक बहुत हाई-फाई प्रोडक्ट बना दिया, बहुत अच्छा क्वालिटी टॉप नॉच है, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट बहुत हाई है. बट आपका जो टारगेट ऑडियंस है, they cannot pay that high price. So there is no point in going for the very best material for such kind of products because they will not be able to pay. But yes, if you are making it for the say niche community like billionaires के लिए ही है, then you go for whatever you want to do. Get the topmost material जो भी है because they can pay. So these things also come into picture when you are doing the prototype. Remember that. And finally, you have a decision, and that decision will depend upon the feedbacks that you will get, the evaluations that you will get. It may be depending again upon the cost. So all those insights and assumptions will come together for you to how to design your prototype. So the types, कि हम किस purpose के लिए prototypes बनाते हैं. So there are 4 main areas जहाँ पर हम focus करते हैं. First is representation. Representation is your form of the prototype. Okay? Representation आप जो है, it is the most basic one where putting your ideas into a picture. Okay? We can use paper sketches, we can use cardboard boxes, we can use inexpensive material, plastic से आजकल जैसे प्ले-डो आ गया है. आप कुछ बनाना चाहते हो कोई मटेरियल का, तो आप प्ले-डो से शक्ल बनाकर दिखाओ कि हाँ इस तरह से कुछ दिखेगा. So these are your very initial or basic prototypes. That will be the representative what it will look like. The second one is precision. Precision prototype, as the name says, it is a bit more precise. But precise का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल exact details होंगे. Precise will be in the sense that yes, this is what it wants to do. So let's say you are making an app. तो उस ऐप के अंदर आपके कितने फर्स्ट फ्रंट उस पर जो आपका पेज है उस पर क्या क्या होगा, क्या क्या बॉक्सेस होंगे. तो यू कैन ड्रॉ दैट आउट कि हाँ एक बॉक्स इधर है, एक बॉक्स इधर है, इसमें ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है. उनकी एग्जैक्ट जो डायमेंशंस है वो नेसेसरी नहीं है कि बिल्कुल वैसी की वैसी हो फर्स्ट प्रोटोटाइप. सो यू विल सिंपली पुट इन कि मुझे ये पूरा का पूरा फर्स्ट जो उसका फ्रंट पेज है यूजर के सामने खुलेगा उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए. तो उसके बाद यू डिसाइड कि आगे कैसे कैसे हम चेंजेस करेंगे. ठीक है. सो प्रिसिशन में इट इज़ अ बिट मोर प्रिसाइज देन द रिप्रेजेंटेशन, बट इट डज नॉट मीन कि बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैं. ओके, तुम्हें पता. देन यू हैव इंटरैक्टिव और इंटरैक्टिविटी प्रोटोटाइप्स जो होते हैं, इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप्स.
ये आजकल अब ज़्यादा आ गए हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स और द प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड आर नाउ AI बेस्ड. So naturally we are looking at prototypes or products or services जहाँ पर आपको user interaction चाहिए. ठीक है. तो if I am making something say tangible in terms of say मैंने कोई स्कल्पचर टाइप का बनाया है, अगर उसके अंदर कोई जैसे होते हैं ना स्कल्पचर्स में भी यू हैव लाइटिंग हो जाती है, पानी गिरता है, झरने चलते हैं ना कि बिजली के उससे चलेगा या बैटरी से चलेगा, तो इंटरैक्टिव में वो चीज़ आपको दिखानी है कि जब वो ऐसा होगा तो हाउ विल इट लुक लाइक. अगेन may not be very precise requirements but still interactive enough that a user understand what is happening. So ये next stage पे आता है representation and आपके precision के बाद interactive prototype बनेगा wherever you need. Computer based में it's very easy to do the interactive prototyping. तो computer based जो softwares आते हैं उसमें interactive prototype बहुत अच्छी तरह बन जाता है. ठीक है. And evolution जो है, evolution prototypes में we talk in terms of whether it is a one-time prototype, which is look into it, let the creative juices flow, throw it away, or it is an iterative one. Iterative one का मतलब है कि ये ठीक है इतना, इसमें ये एक improvement कर देते हैं, then the next one comes. इसमें ये improvement कर देते हैं, then next one comes, and so on. जैसे आप सॉफ्टवेयर में देखते हो कि पहला एक वर्जन रिलीज हो गया है 1.0, सेकेंड रिलीज होता है 2.0, then 3.0 and so on. So evolution is how it is improving. Is it a big change? कई बार आप 1 से सीधे 3 पे जाते हैं, बीच वाला खा जाते हैं, तो what it basically means is कि totally कुछ नया चेंज करें. Okay? और it could be 1.1, 1.2 इस तरह से जा रहा है and suddenly you go on to the second version. So what it means is कि big change is coming. तो सॉफ्टवेयर में आपने मोस्टली देखा होगा वर्ड पावरपॉइंट जब हम यूज़ करते हैं, हम स्टार्ट हुए थे वर्ड आई थिंक 95, मैंने 95 को पहले का नहीं यूज़ किया हुआ आई थिंक, तो मुझे वहाँ का पता है 95 आया, फिर 97 आया, फिर ऑफिस आई थिंक 99 आया, 2000 आया, 2003, 2005, 2007 एंड नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू टोटल अदर 360 वाला जो आया हुआ है. तो दिस इज हाउ एवोल्यूशन हैपेंस. रिप्रेजेंटेशन एज ए सेड बेसिक है, 2 टाइप के हो सकते हैं इसमें, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. ओके. ऑफलाइन में हमारे पेपर स्केचेस, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, मॉक जो हम बनाते हैं छोटे मोटे, इवन दो 3D स्केलिंग मॉडल्स देखे होंगे आपने, वो भी आपके प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं. ठीक है. जनरली पेपर प्रोटोटाइप पे कोलैबोरेशन बहुत ईजी है, बिकॉज ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो आप. I want to bring some prototype here, पेपर का है, कार्डबोर्ड का है, बहुत इजीली कैरी हो सकता है, डिस्कशन हो सकती है. साइज डज नॉट मैटर हियर क्योंकि बड़े बड़े नहीं बनाएंगे हम इसमें, अनलेस इट इज अ प्रॉपर मॉडल, स्केलिंग मॉडल है, स्केलिंग मॉडल नहीं बनाते. दैट इज व्हाई दीज आर वेरी वेरी पॉपुलर. ऑनलाइन में यू हैव सी पेन एंड पेपर, स्टिकी नोट्स, स्टेंसिल्स, इनके थ्रू हम अपने सिंपलेस्ट प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं, कटिंग करके बना सकते हैं. शेप्स कैन बी शोन, चार्ट पेपर्स, स्टोरी बोर्ड्स. आई कैन यूज दिस बोर्ड टू क्रिएट अ स्मॉल प्रोटोटाइप की हाउ विल माई स्क्रीन लुक लाइक. ठीक है. तो इस तरह से ये स्क्रीन वाला है, आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बॉक्सेस होंगे, यहाँ पर हम ये पूछेंगे. दिस इज मोर लाइक कि आपने एक टूरिज्म का कुछ बनाया हुआ है, फ्लाइट सर्चिंग का. सी देव रिटन रिसर्च फ्लाइट्स, कहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मतलब what all is needed, and then you can keep on changing depending upon आपको किस तरह की. बहुत बेसिक है. प्रिसिशन में हम 3D प्रिंटिंग अलाउ करते हैं. प्रिसिशन में हम कंप्यूटर भी यूज़ करके इसमें इसकी डायमेंशंस रहेंगी. यू कैन सी यहाँ पर आप डायमेंशंस और 3 पार्ट्स निकाल सकते हो. यू कैन से कि हाँ एक छोटा पार्ट अलग लगेगा, फिर बड़ा पार्ट आएगा, मेजर पार्ट आएगा. And these are the kind of 3D printer models. 3D printer आए हुए हैं आजकल, CAD प्रिंटिंग आई हुई है. तो इस तरह के मॉडल आपको ऑफ कोर्स पाउडर वगैरह डालना पड़ता है, मटीरियल डालना पड़ता है उसके अंदर, एंड यू गेट समथिंग लाइक दिस. तो आपको पूरी एक शेप बन के सामने आ जाती है. यू कैन टच इट, इट बिकम्स टैंजिबल. आप उसका साइज नोट कर सकते हैं, एंड दैट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ व्हाट यू आर सेलिंग आउट टू द.
वी आर लुकिंग एट द लुक एंड फील ऑफ द ऐप. ऐप जब बनाएंगे तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होंगे वो टेस्टिंग करेंगे. दिस इज वन ऑफ द इंटरैक्टिव मॉडल्स. 3D है ये भी. व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ एन फ्लाइट एरोप्लेन का ही है, बट आप यहाँ पर उसका चेंज कर सकते हैं, डायमेंशन चेंज कर सकते हैं कि आपके फ्लैट का साइज कितना होगा, कितना उसका फ्लो रहेगा, किस मटेरियल से बनेगा, हाउ विल इट फ्लो. आजकल तो ये पूरा का पूरा कंप्यूटर सिमुलेशन से पता लग जाता है कितनी दूर जा सकता है. मिसाइल्स वगैरह कैसे होते हैं, सारे के सारे पहले से ही थोड़े ना मिसाइल लॉन्च होकर देखते हैं. दे कीप ऑन डूइंग द सिमुलेशंस कि अगर इसमें इतना पेलोड डालेंगे कितनी दूर जाके फटेगा. कंप्यूटर वाइज हम देखते हैं कि कहाँ पर जाना है, उसमें हम एग्जैक्ट पोजीशन पे उसको ड्रॉप कर पा रहे हैं कि नहीं ड्रॉप कर पा रहे हैं. एंड a few people have watched Oppenheimer movie. Even atomic bomb का they did a prototype explosion. न्यू मैक्सिको के जाके फ्रांस भी वहाँ पर होके वो खाली एरिया था, डिजर्ट एरिया था. They did that. उससे उनको पता लगा कि कितनी रेडिएशन निकलती है, कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती है. एंड देन ऑफ कोर्स द फाइनल डिसीजन वाज टेकन. एंड एवोल्यूशन एज आई सेड देयर आर टू थिंग्स जो हमारे पेपर टाइप के होते हैं, कार्डबोर्ड टाइप के होते हैं. वंस वी हैव सिमुलेटेड द डिस्कशन, वंस वी हैव डिसाइडेड टू गिव इट टू योर पीपल, then it is basically use and throw. Once your purpose is done, you get the ideas कि क्या क्या changes करनी है, it will be thrown. क्योंकि वो basic है, उसका कोई use नहीं है, वो आप client को नहीं दिखा सकते. Unless the client asks for your basic starting prototype. ठीक है? Iterative ones are the ones जैसे मैंने 3D printer से निकाला है, so अब इसमें I can make changes. It was totally green. Client से नहीं, मुझे जो कान है वो pink चाहिए उसमें. So you make a change, pink निकाला. So this way, small iterations, and you will get to your final product. Based on the evolutionary also, जो हमारे throw away वाले हैं, the term that we use for these is called rapid prototyping. Okay? इसी को हम additive manufacturing भी कहते हैं. And this rapid क्यों बोलते हैं उसको? Because it is very fast to do. ठीक है. तो जो बेसिक वाले हमारे हैं they are called rapid prototypes because you can make them very fast, they are inexpensive, time कम लगता है, and they can be given to lot of people to think about it. आपके पास 6-7 डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, 6-7 रिसर्च ग्रुप्स हो सकते हैं, तो आप उनको वो मॉडल दे दोगे बनाकर, and then they will